ઘણા વર્ષો પછી આજે આ ઓટલા ઉપર સત્સંગનો આનંદ લેવા માટે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ. દર વર્ષે દીપાવલી પછી ભાઈ બીજ અહીંયા જ ઉજવવામાં આવતી હતી. અને આજે ખુશીની બીજી વાત બી છે. ગમનભાઈ 85 વર્ષના થઈ ગયા. હેપી બર્થડે ટુ યુ. અને બીજી ખુશીની વાત એ છે કે એમના ચિરંજીવ અને એમની પુત્રવધુ એ લોકોએ ઉત્સાહથી આ નવચંડીનું આયોજન કરવા માટે તૈયારી દાખવી અને કીધું ગુરુજી અમારે રાખવું જ છે ને અમારે ત્યાં તમારે આવવાનું જ છે. એટલે પરંપરા પણ શરૂ થઈ ગઈ. પપ્પાની પરંપરા દીકરામાં આવી. એટલે આપણે ખાતરીપૂર્વક કહી શકાય, ઓય તે ક્યાં ગયો? તમારું સાંભળશે. તારી વાત કરું તો તું સામે નથી એમ થોડી ચાલે. પપ્પાની પરંપરાનો નિર્વાહ તું કરી દે અહીંયા. અને આજે એક સારો કાર્યક્રમ પ્રારંભ કરીને અહીંયા હવે તારે દર વર્ષે સત્સંગનું આયોજન રાખવાનું છે. એટલે જ તને બોલાવ્યો. હવે તું જા ભાઈ, તારું કામ કર. મા ભગવતીની પ્રેરણાથી જ આ નવચંડી યજ્ઞનું આયોજન પ્રારંભ થયું હતું. ભગવતીએ મને સંકલ્પ આપ્યું હતું કે 21 નવચંડી કરવાની છે. આજે માતાની કૃપાથી આપણે 19મી પૂરી કરી રહ્યા છીએ. 19મી નવચંડી અને 20મી નવચંડી આપણા દિનેશભાઈ રમણભાઈ પટેલ વલસાડ ખાતે. એમ તો એ છે તો મોટી ડોલ ડુંગરીના, અને એમને સુવિધા તો મોટી ડોલ ડુંગરીમાં વધારે રહે બિચારાને. ત્યાં જગ્યા બી આંકડી લાગે, રસ્તા ઉપર જ કરવું પડશે. તો આજે વાત કરવાનો છું એને, કહું ને. હા, કીધું મોટી ડોલ ડુંગરીમાં જ રાખ, મંદિરની બહાર. ત્યાં બહુ સારી જગ્યા બી છે અને ત્યાં રાખશે તો વધારે મને ગમશે. હું વાત કરીશ આજે. તો એવી રીતે આ 20મી થશે. 21મી મારા બેન બેસેલા છે, ચંચલબેન. છેલ્લે આવી, પહેલા આવવાવાળી સૌથી છેલ્લે આવે. 8-4 એ પહેલા વચ્ચે ગુલાબભાઈ ઘૂસી ગયા અને એમને કહ્યું કે મારે હનુમાન જયંતિના દિવસે 100 कुंडी यज्ञ करवानो છે. 100 कुंडी यज्ञ. हाँ, मतलब उसने तो 100 सुनार की और 1 लुहार की. तो गुरुजी कयो यज्ञ करिए? मैं कीधुं हनुमान याग करो. हनुमान जयंती છે त्या દિવસે અને સતકુંડાત્મક હોય ને 100 યજમાન બેસે અને જેટલા બી હનુમાન ચાલીસા થઈ ગયા હો તો થશે જ, હોતી વધારે જ થઈ જવાના છે. તો એના થકી આપણે હોમ હવન પણ કરશું. 23મી 23/4
તેવી છે પ્રેરિત. તો એવી રીતે આપણા વિસ્તારમાં આ યજ્ઞનો પ્રારંભ એવી રીતે થઈ રહ્યો છે કે સતકુંડાત્મક પર જ આવીને પૂર્ણ થવાનો છે. સતકુંડાત્મક પર. અને જ્યારે આ યજ્ઞો શરૂ કરવાની વાત આવી ત્યારે ભગવતીની પ્રેરણા થઈ કે વિદ્યાનંદ તું જ્યાં બી જાય સત્સંગ માટે દેવી ભાગવત સંભળાવ. તો હવે હું તમને દેવી ભાગવતમાંથી જ્યાં સુધી પહોંચી ગયો હતો ત્યાંથી આગળનો પ્રસંગ અહીંયા શરૂ કરીશ. ઘણા બધા ભક્તો નવા બી બેસેલા છે અને ઘણા બધા તો સાથે ને સાથે જ રહે છે દરેક કાર્યક્રમમાં, એટલે એ લોકોને તો ખબર જ હોય. છતાં પણ તમને બી હું અહીંયા જણાવી દઉં છું. ભગવાન વેદવ્યાસ એમના મનમાં પુત્રેષ્ણા જાગૃત થઈ. એષ્ણા કોઈ પણ જાતની હોય મનુષ્યને દુઃખી તો કરે જ. કોઈ પણ જાતની એષ્ણા હોય, જેમ સમજો વિત્તેષ્ણા. વિત્તેષ્ણા એટલે પૈસા. અને મને જ્યાં સુધી લાગે છે જેટલા બેસેલા છે એ કહેતા જ હશે મન જ મનમાં કે આ નવચંડીમાં અમે દર્શન કરવા આવ્યા તો લક્ષ્મીજીની કૃપા થવી જ જોઈએ અને પૈસા મળવા જ જોઈએ. બરાબર ને? લક્ષ્મી જોઈએ કે નહીં? બોલો. જો જોરથી બોલશો ને તો લક્ષ્મીજી તત્કાલ કૃપા કરશે અને ધીમેથી બોલશો તો પછી ધીમે ધીમે આવશે. બોલો લક્ષ્મી જોઈએ. એના વગર કામ ચાલતું નથી. એટલે લક્ષ્મીજી તો જોઈએ જ જોઈએ. આ છે વિત્તેષ્ણા. અને માણસ જ્યારે પૈસો કમાઈ લે ને દીકરાઓ તો એના મનમાં ઈચ્છા થાય કે મારું નામ થાય, લોકોમાં હું કાંઈક કરીને જાઉં, લોકો મને યાદ કરે કે આ ભાઈએ કંઈક સારું કામ કર્યું છે. એનું નામ છે લોકેશના. વિત્તેષ્ણા, લોકેશના અને પુત્રેષ્ણા. એષ્ણાનું મતલબ હોય છે ઈચ્છા, કે જોઈએ જ જોઈએ. જો સંસારમાં બે જાતના માણસો હોય, ચાલશે. એક તો કેવા હોય? ચાલશે. અને એક કે જોઈએ. બીજો શું કે? યાદ રાખજે, જે જોઈએ વાળા છે એ દુઃખી રહેવાના અને ચાલશે એ સુખી રહેવાના. जो कुछ मिल गया उसमें आनंद मान ले એ ચાલશે. અને મને તો એવું જ જોઈએ, મને એવું જ ફાવે, નહીં તો ફાવતું. એ માણસ હંમેશા દુઃખી જ રહે. કારણ કે બધી ઠેકાણે બધી વ્યવસ્થાઓ તો થતી નથી ને ભાઈ. અને અનુકૂળ વ્યવસ્થા ન હોય તો પ્રતિકૂળ વેદનીયમ દુઃખમ. જ્યાં પ્રતિકૂળતા આવી જાય છે ત્યાં દુઃખ આવવાનું જ આવવાનું છે. પણ આ એષ્ણાઓ તો બહુ જ દુઃખી કરે. વ્યાસજી મહારાજ દુઃખી થઈ ગયા કે મને દીકરો જોઈએ, મને છોકરો જોઈએ. અને છોકરો જોઈએ એના માટે તપસ્યા કરી. બદ્રિકાશ્રમમાં જઈને, સુમેરુ પર્વત પર જઈને 100 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી. अब 100 વર્ષ સુધી કોઈ દીકરા માટે તપ કરશે તો એનો દીકરો બી તો એવું જ નીકળશે ને. પછી અરણી મંથન કરતા કરતા ઘૃતાચી નામની અપ્સરાનો સંકલ્પ કરતા એને જોઈને એમની શક્તિનો પાત થયો. એનાથી ભગવાન સુખદેવ પ્રકટ થયા. કોણ પ્રકટ થયા? સુખદેવ. અને સુખદેવ જન્મજાત વિદ્વાન કહી દો, વિરક્ત કહી દો, જન્મજાત સારામાં સારા વ્યક્તિ પેદા થયા.
આ તપસ્યાનું ફળ. જો છોકરાઓ તો તમને બી જોઈએ, પણ તમે તો છોકરાઓ એમ જ પેદા કરી નાખો છો. એના માટે ક્યારેય માળા ફેરવતા નથી, અપવાસ રાખતા નથી. ક્યારે બી તમે છોકરા છોકરીઓ પેદા કરો ત્યારે તમારા મનમાં એ સંકલ્પ હોય કે મારો છોકરો ભક્ત હોય, મારો છોકરો દાતા હોય, મારો છોકરો सूरवीर હોય. मेरा लड़का दाता हो, मेरा लड़का वीर बने, मेरा लड़का सूरवीर बने, भक्त बने. ऐसी इच्छा करके तुम लड़का पैदा करते हो कि करने के लिए कर देते हो? चलो થઈ ગયો. ઈમાનદારીથી બોલો, ક્યારે ચિંતન કરો છો? નથી કરતા. એટલે પછી થાય જેવું થાય તેવું. અહીંયા ભગવાન વેદવ્યાસે તો છોકરાની પ્રાપ્તિ માટે તપસ્યા કરી કે સારામાં સારો છોકરો, ગુણવાન છોકરો, વિદ્વાન છોકરો, સ્વરૂપવાન છોકરો મને જોઈએ. એટલા માટે સુખદેવ જેવા પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ. सद्य सर्ववृद्धे बालो, वह पुत्र बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होने लगा. पिता ने देखा पुत्र बड़ा हो रहा है तो अब इसका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, जनेऊ करना चाहिए. ब्राह्मण का बालक है तो उसका जनेऊ होना चाहिए. ऋषि कुमार है तो यज्ञोपवीत होना चाहिए, वेदाध्ययन होना चाहिए. એટલે જનેऊ કરી દીધી. અને પછી વેદ ભણવા માટે એમને ગુરુકુલમાં મોકલવામાં આવ્યું. અને ગુરુકુલ બી ક્યાં આગળ? એ તો બહુ મોટા પહોંચવાળા હતા ને, લાંબા હાથ જેને આપણે કહીએ ને કે બહુ લાંબા હાથ ભાઈ એમના, તો એમના બહુ લાંબા હાથ હતા. જેમ કે તમારા છોકરાઓને તમે ભણાવવા જાઓ તો પહેલાં જુઓ ને કે સારામાં સારી સ્કૂલ કેવી, કઈ સ્કૂલ, ફીસ કેટલી. સારામાં સારી ફીસ ચૂકવીને છોકરાને તમે સ્કૂલમાં દાખલો આપો. એવી જ રીતે આ સુખદેવજી માટે વ્યાસજી મહારાજે વિચાર કર્યો કે એને ભણાવવું ક્યાં? તો ડાયરેક્ટ બૃહસ્પતિ જોડે સંપર્ક કર્યો. किसके साथ? बृहस्पति के साथ. और स्वर्ग के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा. कहाँ भेजा? स्वर्ग के विद्यालय, बृहस्पति के पास में, सुखदेव जी महाराज को. पढ़ लिख करके और जब वो अपने पिता के पास आए तब पिताजी ने उपदेश किया. भगवान वेदव्यास ने कहा, सुखम प्राह सुतम व्यासो वेदोधीतस्त्वया नघ धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कुरु भार्याम महामते. तुमने ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके वेदाध्ययन कर लिया है. हे निष्पाप, तुमने धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया है. अब मेरी इच्छा है, कुरु भार्याम, तुम विवाह करो, तुम शादी करो. व्यास जी महाराज किसको बोल रहे हैं? सुखदेव जी को बोल रहे हैं, अब तुम विवाह करो. गारस्थ्यम च समासाद्य यज देवान पितृनथ ऋणान मोचे माम पुत्र प्राप्य दारान मनोरमाम. और हुआ क्या था, एक बार व्यास जी महाराज ने एक छोकरी को देख लिया, एक ऋषि की लड़की को. उस लड़की को देखने के मन में उनको आ गया कि मेरे लड़के के ये लायक है, इसलिए इसका ब्याह उसके साथ हो जाए तो अच्छा. हर माँ बाप की इच्छा होती है ना कि उसका बेटा ब्याह करे. तुम सब गृहस्थी बैठे हो, बोलो न, તમારા દીકરાના લગ્ન થાય એવી તમારી ઈચ્છા હોય કે નહીં? તો બોલો નહીં, હરામ હું કામ કરો છો? अच्छा, તમારી એવી ઈચ્છા થાય કે મારો છોકરો બાવો થઈ જાય, એવી ઈચ્છા થાય ખરી? नहीं था. देखो माता हिला था, मतलब मेरा चेला होकर के बोलता है, बाबा का चेला सुरेश, और ऐसे ऐसे माता कर रहा है.
क्योंकि इसके पास एक ही छोकरा है। अगर 2-3 होता तो शायद हाँ भी बोल देता। कोई भी माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे पुत्र का विवाह हो, स्वाभाविक इच्छा होती है। और वो क्यों होती है कि तुम्हारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण हैं, कर्जदार हो तुम। उस कर्जे को उतारने के लिए देखो, तुम्हारे ऊपर एक पितृ ऋण है, एक देव ऋण है, एक ऋषि ऋण है। पितृ ऋण का अपमार्जन पुत्र पैदा करके हो जाता है। शादी कर लिया बच्चे की और उसको लड़का हो गया तो आप पितृ ऋण से उऋण हो गए। और यज्ञ कर दिया, आज जैसे यहाँ नवचंडी यज्ञ हो गया तो हमारे गमन भाई देव ऋण से उऋण हो गए। और लड़के को पढ़ा लिखा करके और योग्य बना दिया तो ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। 3 ऋण होते हर एक के ऊपर। इसीलिए कह रहे व्यास जी महाराज कि हे पुत्र, तू विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त कर दे। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च तस्मात् पुत्र महाभागे कुरुस्वाद्य गृहाश्रमम्। अपुत्र की गति नहीं होती है, पुत्र होना ही चाहिए। पुत्र शब्द का अर्थ ही होता है पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र है। एक पुम नाम का नरक होता है, उस नरक में जाने से जो रक्षा कर दे उसका नाम पुत्र होता है। यानी पुत्र हो गया यानी एक नरक में न जाने की गारंटी कि फिर तुमको कम से कम वो पुम नाम का नरक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने पुत्र पैदा कर दिया इसके लिए। तो हे पुत्र, तुम भी पुत्र पैदा करो, इसके लिए विवाह करो। कृत्वा गृहाश्रमम पुत्र सुखिनम कुरु माम सुख। हे सुख, तुम मेरे को सुखी करो। यानी बेटा ब्याह करे तो बाप को सुख मिलता है। बेटा ब्याह करे तो पिता को क्या मिलता है? सुख मिलता है। तुम मेरे को सुखी करो। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, थोड़ी देर बाद सब बोलूँगा, तुमको पता लगेगा कि क्या सुख करता है। तुम ही आके रोते हो फिर मेरे पास, एवं छोकरो मळ्यो ने पेलो मळ्यो ने तेवो मळ्यो। चालो कांई वांधो नहीं, हमणां तो लखेલું છે, વાંચું છું कि सारू ज छे कि तमने छोकरो मळे। सुखदेव जी महाराज ने सुन लिया सब, और बल्कि पिता ने यह भी जना दिया कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया है, तब जाके तुम मेरे यहाँ जन्म लेके आए हो। तब मैं तुमसे भी ये कहना चाहूंगा कि तुम विवाह करो और पुत्रोत्पादन करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, किम त्वं वदसि धर्मज्ञ वेदव्यास महामते तत्वेन साधि शिष्यम माम त्वदाज्ञां करवाण्यलयम। हे तात, आपने मुझे ये क्या शिक्षा दी है? आप तो धर्मज्ञ हैं, आप क्या कह रहे हैं मुझसे? संसार में फंसने की बात कर रहे हैं। आप महात्मा पुरुष हैं, तत्वज्ञ हैं, आपको तो अपने पुत्र को तत्व ज्ञान की बात बताना चाहिए था। उसकी जगह आप मुझे संसारी बनाना चाह रहे हैं। ऐसा सुखदेव ने अपने पिता व्यास से कहा। किम सुखम मानुषे लोके ब्रूहि तात निरामयम दुख विद्धम सुखम प्राज्ञा न वदंती सुखम किल। हे तात, हे पिताजी, आप मुझे एक बात बता दीजिए,
संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो विपत्ति रहित सुख का उपभोग कर रहा है? ध्यान से सुनना, एक एक तर्क ऐसा दिया है सुखदेव ने। हे पिताजी, आप मुझे बताइए, संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख का अनुभव नहीं होता हो? તમે બધા બહુ વિવેકી અને વિચારશીલ માણસો છો. તમને જ પૂછું છું, તમને સુખ હંમેશ માટે મળી ગયું છે? તમને કોઈ દુઃખ છે જ નહીં? બોલો તો. કોઈ દુઃખ નથી? દુઃખ જ દુઃખ છે. જેને સુખ તરીકે તમે સ્વીકારો છો એમાં પણ છે જ ને, સામે દેખાય છે. अच्छा देख लो, मेरे को पढ़ना लिखना है, फिर पढ़ लिख के नौकरी चाहिए. अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो इन भाई साहब के पास एक फ़ोन आया था वो नौकरी का. तो नौकरी चाहिए, पढ़ लिख गए तो क्या चाहिए? अब नौकरी मिल गई तो फिर छोकरी चाहिए, है ना भाई? नौकरी हो गई, अब छोकरी चाहिए. अब छोकरी भी मिल गई तो फिर उसे छोकरा चाहिए. मतलब आपके चाहिए का कहीं अंत आता है क्या? देखो, आप ब्याह हो गया और छोकरा नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, लड़की नहीं हुई, कोई इशू नहीं हुआ, तो बोलो दुखी होते हो कि नहीं? और फिर अगर हो गया, आपके अनुकूल नहीं रहा, तो उसे देख देख करके आपको प्रसन्नता होती है कि दुख होता है? होता है ने? હવે કઈ કમાવતો નથી, બે પૈસા લાવતો નથી. છોકરો અગર તમારી સેવા ન કરે, ગળપણમાં તમને ગરમ ગરમ શીરો ન ખવડાવે અને મેથી પાક ખવડાવે તો કેવું લાગે? સારું લાગે દીકરો? नहीं लागे. सुखदेव ने कितने अच्छे एक सेंटेंस में बात कह दिया. संसार में ऐसा कौन सा सुख है जो दुख के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है? अर्थात निश्चित है कि कोई भी सुख परिणामतः दुख देने ही वाला है. और तो और विवाह ही कर लिया, जिस भी लड़की से विवाह किया, भगवान करे तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहे, सुखी रहे, मनोनुकूल रहे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आज्ञा में रहे, तुम भी उसकी आज्ञा में रहो, बहुत अच्छा है. परस्परम भावयंत होना चाहिए. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो का जवाब क्या है? छूटा-छेड़ा. जिसको धूमधाम से गाजते बाजते घोड़ी के ऊपर की गधेड़ी पे चढ़ के लाए थे, नहीं घोड़ी पे चढ़ के लाए थे और गधेड़ी पे चढ़ा करके वापस दे देते. काहे? तुम तो सुखी हो रहे थे. तो सुखदेव कहते हैं ऐसा कोई सुख नहीं है संसार में कि जिसमें दुख नहीं जुड़ा हुआ हो. तब हे पिताजी, आप मुझे क्यों करके इसके अंदर डालना चाह रहे हैं? आपको तो मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए. आप मुझे कहते हैं विवाह कर लो. अब मैं विवाह कर लूंगा तो मैं परतंत्र बनूंगा कि नहीं? जो आएगी उसकी इच्छा के अनुकूल चलना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, તમારો ધણી અગર તમારી ઈચ્છા અનુકૂળ ન ચાલે તો તમને ઘરમાં ગમે કે? સાચું સાચું બોલજો. આ પોલ પટ્ટી है तुम्हारी, ગમે કે? અને તમે સંભળાવી નહીં નાખો, એ તમારે માનતો નથી, હું સમજે? લોકોની વચ્ચે નહીં બોલો. તમે કદાચ બુદ્ધિશાળી હોય, વિવેકી હોય, પણ એકલામાં તો ધોઈ કાઢો કે નહીં મૂળાની જેમ. કેટલા ખુશ થઈ ગયા હે બધા, હે?
कितने खुश हो रहे हैं कि कितनी सच्चाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देवी भागवत बोल रही है। हे पिताजी, और इसी का ट्रांसलेशन मुझे लगता है तुलसीदास जी महाराज ने किया है। जो वाक्य यहाँ लिखा है इन्होंने, सुखम किम परतंत्रस्य, परतंत्र व्यक्ति को कोई सुख नहीं मिलता। चौपाई लिखी है ना सूर्य प्रकाश जी, तुलसीदास जी ने, पराधीन, यही का ट्रांसलेशन है, इसी श्लोक का ट्रांसलेशन है वो। पराधीन। अब श्रीमती जी ने कह दिया कि मेरे को तो तीर्थल घूमने चलना है, और तुम कह दो कि नहीं मुझे तो बरुमाल बाबा बावेश्वर का दर्शन करने जाना है। अब पत्नी कहेगी तुम्हारी माने इसकी नहीं, मार तो त्या चाली ने चाट चाटवानी छे, पेली हूँ हो चाट શું ખાવ તમે, શું ખાવ? ત્યાં દરિયા કિનારે હું હોય પેલો રેકડી લગાડીને ઊભા હોય ને, પાણી પૂરી, भेल पूरी। हाँ, मेरे एक भक्त थे हेमदेव शर्मा, बड़े अच्छे विद्वान पुरुष थे। उन्होंने एक दिन कहा मुझसे, गुरु जी आपको पता है गृहस्थ आश्रम का सुख कैसा? मैंने कहा भाई मेरे को क्या पता, मैं तो सन्यासी महात्मा हूँ, मुझे नहीं मालूम है। बोला मैं बताऊँ कैसा सुख है? बोला गुरु जी आप कभी चौपाटी पे गए? मैंने कहा हाँ बहुत गया हूँ, घूमता रहा हूँ। बोला वहाँ भेल वाले होते हैं, भेल पूड़ी होती है ना, भेल पूड़ी, हमारे यहाँ बील पूड़ी है, चौपाटी पे भेल पूड़ी होती है ना, तो वो भेल पूड़ी वाले होते हैं। बोला हाँ होते हैं। तो देखिए आप वहाँ गृहस्थी के सुख का आपको स्पष्ट दर्शन हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? बोला वो भेलपुड़ी खाता है, वो इतनी तीखी होती है, आँख से आंसू आ रहे होते हैं, नाक से छेड़ा साफ कर रहा होता है, और खाता जाता है लपड़ लपड़, और फिर भी कहता है एक दोना और, यानी एक क्या, एक पड़ी और आप एक खाઈને નાકમાંથી પાણી નીકળે, આંખમાંથી પાણી નીકળે, રડતો રડતો भी कहे कि एक दड़ियो और आप। यही गृहस्थी है, बोलता है यही गृहस्थी का सुख है। रोता रहता है फिर भी कहता है कि मेरा ब्याह हो जाए, मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, फलाने का हो जाए, एक दड़िया और। सुखदेव महाराज कह रहे हैं सुखम किम परतंत्रस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः। और जब विवाह हो जाएगा तो बिल्कुल पराधीनता हो जाएगी। और दूसरी एक बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हथकड़ियों से अपने हाथों को छुड़ा सकता है, बेड़ियों से पैरों को छुड़ा सकता है। ये जितने भी बंधन हैं उनको कोई भी बुद्धिशाली पुरुष छुड़ा करके जा सकता है, लेकिन स्त्री, पुत्र, पुत्री, संसार, माता, पिता, इनका बंधन इतना जबरदस्त होता है कि कोई चाह कर के भी छुड़ा सकता। तो पिताजी मुझे क्यों बांध रहे हो? सुखदेव भगवान कह रहे हैं मैंने हूँ का मैं तुम्हें फंसा भी दिया छो। ये बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है। माता पिता को छोड़ नहीं सकता, स्त्री पुत्रादिकों को छोड़ नहीं सकता, और सब में मारू मारू करे छे। भगवान की भक्ति में क्या बोलना पड़ता है? तारू तारू बोलो जोरती, यानी मारू का ही नहीं बधु तारू। आने आ संसार में हूँ बोलू पड़े, आ मारू छे, आ मारू छे, आ मारू छे, है ना। एनु परिणाम शू आवे खबर? जरा बे चार बार बोलो मारू छे बोलो, मरवू छे मरवू छे मरवू छे। समझन पड़ी? जे मारू मारू करे एनु परिणाम हूँ आवे? आने बोलो तारू छे बोलो,
तारू छे तारू छे यानी तरवू छे तरवू छे तरवू छे। अगर आपने परमात्मा के आगे कह दिया कि तारू छे ईश्वर मारू कहीं નથી તો એનો મતલબ તમે તરી ગયા અને મારું મારું કહ્યું તો હવે તમે જ નિર્ણય લો તમારે હું કરવાનું છે। એટલે દીકરાઓ તરવાની વાત કરો, મરવાની વાત न करो। भगवान सुखदेव कह रहे हैं अपने पिता से, आत्मा रामस्य भूयोपि न भवत्याति लोलुपः। जो है पिताजी अपनी आत्मा में ही रमण करता है, मस्ती लेता है, वो विषयों की तरफ आकृष्ट नहीं हो सकता, उसकी वृत्ति नहीं जा सकती है। शिव महिमा का स्तोत्र अगर याद हो तो बोल लो, नहीं स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। अरे वाह, बस बस यही तो के ज़्यादा गुरु मत बनो, जितना मैं बोलाऊँ उतना ही बोलो, है ना। हाँ, नहीं हाँ, जे પોતાની આત્મામાં જ રમણ કરે છે એ લોકોને વિષયોની જે મૃગ તૃષ્ણા, देखो शब्द भी क्या वापरा है पुष्पदंत ने, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब जानते हो बेटा? हमारा ये जानता होगा आदिवासी मंडलेश्वर खंडू भाई, શું થાય મૃગ તૃષ્ણા मतलब? એટલે ठीक जवाब दिया। वस्तु है नहीं और उसके पीछे दौड़ना, उसका नाम मृग तृष्णा। अब सड़क के ऊपर अपने को पानी दिखाई देता है, डामर के ऊपर, या अपने को दिखाई देता है रेत के अंदर, प्यास लगी है, आप पुरुष हैं, मनुष्य हैं, बुद्धिशाली हैं, समझ सकते हैं कि नहीं ये मेरी भ्रमणा है, लेकिन वो जो मृग है वो तो दौड़ता है, वो सोचता है तो पानी पानी भरा हुआ है, मैं जाऊं पानी पी लूं, और वो जितना पानी के लिए आगे दौड़ता है पानी उससे आगे दौड़ जाता है, पानी उससे आगे चले जाता है। मतलब मृग तृष्णा, वस्तु નથી છતાં પણ આકર્ષણ, વસ્તુ હોય અને આકર્ષણ હોય તો છતાં બી સમજાય, પણ ત્યાં તો છે જ નહીં। એટલે જ આ જે વિષયો છે લૌકિક, શ્રક ચંદન વનિતા, સંસારના ભોગો, એમની વાસ્તવિકતા કઈ નથી દીકરાઓ। આપાત રમણીય દેખાય છે। આપાત રમણીયનો અર્થ હોય છે ડુંગરા બહુ રળિયામણા, આપણે કહે ને એમ, જોરથી બોલો ને, દૂરથી અને પાહી જાઓ તો પથરાજ, એવી જ દશા આ વિષયોની છે। આકર્ષણ એટલો બધો હોય કે બાપ રે બાપ, કે એના સિવાય તો કાંઈ છે જ નહીં। જ્યારે નવા નવા છોકરાઓ એક બીજાના પ્રેમમાં પડે ને તો તમે જુઓ, પછી એને લાગે કે એનાથી ખૂબસૂરત તો સંસારમાં ऐश्वर्या राय પણ નથી, हेमा मालिनी भी नहीं है। ये तो मैंने यहाँ की सुंदरियों की बात की, कहीं तो बोल देंगे उर्वशी भी इतनी खूबसूरत नहीं जितनी मैंने जिसको पसंद किया है। ऐसी ऐसी कल्पना कर लेंगे। एक भाई ने तो अपनी प्रेमिका को बोला, तू मने के तो खरी हो तारा माटे आसमान माथी तारला तोड़ी लाऊं, आसमान माथी तारला तोड़ी लाऊं। એટલામાં જ પેલી છોકરી બહુ હોશિયાર હતી, સ્ટૂલ લઈને આવી। સ્ટૂલ સમજો ને,
ટેબલ 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 લઈને આવી. આ બલ્બ ફ્યુઝ થઈ ગયું છે, જરા એને ઉતારીને લાવની. ये बल्ब है ना, हाँ, ये बल्ब फ्यूज हो गया है, पहले इसको तो उतार के ला दूसरा लगा दे. घर में कोई था नहीं दूसरा बल्ब बदलने वाला, तो उसने कहा इतना तो ત્યાં બી હાથ નહીં પહોંચ્યો એને. પહેલી ટેબલ લાવી તો પણ એનું હાથ ત્યાં नहीं पहुंचे तो एकदम हताश हो गया कि हाथ नहीं पहुंचा. हाँ गांडा, अब बल्ब ऊपर तारो हाथ नहीं पहुंचो तो तारला तोड़ी लावવાનું મારા માટે. ગાંડપણની હદ હોય. આ વિષયની મૃગતૃષ્ણા. આત્મામાં જે રમણ કરતા હોય છે, પોતાની જાતમાં જે મસ્ત રહેતા હોય છે, પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપને સમજીને ઓળખીને જે મસ્તી લેતા હોય છે, એવા લોકોને વિષયોનું આકર્ષણ હોતો જ નથી. એ બધા જ આપાત રમણીય છે, માત્ર દેખાવમાં. પેલા પર્વતની જેમ પાસે જાઓ તો પથરા જ પથરા, माथा फोड़ो પછી કાંઈ नहीं મળે. सुखदेव कहते हैं आपने मुझे बृहस्पति के पास पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन मैं देखिए वहां से वापस लौट के आपके पास आ गया. बृहस्पति जैसा गुरु, जो देवताओं के गुरु हैं, उनके पास आपने पढ़ने के लिए मुझे भेजा. मारू मन ત્યાં પણ લાઈ ગયું नहीं, मेरा मन नहीं लगा. क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो भी गृहस्थी है. बृहस्पति भी गृहस्थी है, और गृहस्थ में पड़ा हुआ व्यक्ति ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं कर सकता. पिताजी, वो केवल कर्म कांड का उपदेश करेगा. और वही बातें कर रहे थे वेदों के अंदर. सुखदेव ने तो यहाँ तक कह दिया वेदों में है क्या, यही तो है ना, कर्म करो, कर्म कांड. और वो कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं. एक क्रियमाण कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है, एक प्रारब्ध कर्म होता है. इन्हीं कर्मों को करने में प्रवृत्त होने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है. पिताजी, क्या लाभ होने वाला है इससे? और इन कर्मों को करने में भी हिंसा की प्राधान्यता हो जाती है. वेदों में भी ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं जहां के ऊपर हिंसा प्रधान यज्ञ होते हैं. हालांकि व्यास जी महाराज उसका जवाब देंगे और कह देंगे वैदिक की हिंसा हिंसा नहीं होती है. उसका कारण भी बताएंगे. मैं भी तुम्हें जब आगे कहीं प्रवचन होगा इस बात का खुलासा करूंगा. लेकिन फिर भी यहाँ पर भगवान सुखदेव ने तो निषेध कर दिया और कहा अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं, आप मेरा कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे क्रियमाण कर्मों से भी छुटकारा मिले, संचित कर्मों से भी छुटकारा मिले, और प्रारब्ध कर्म से भी छुटकारा मिले. मैं आपसे यही चाहता हूँ. अधीत्य वेद शास्त्राणि संसारे रागिणस्य तेभ्य परो न मूर्खोस्ति सधर्मा आया. बड़ी विचित्र बात बोल दिया सुखदेव ने. वो कहते हैं सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी, एक गाना था ना बहुत पुरानी मूवी का, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों हम हैं अनाड़ी. ये यहीं से लिया होगा जिसने भी लिया होगा. धर्म शास्त्र पढ़ा, वेद शास्त्र पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद में आप वापस मुझे संसारी बना करके मेरी होशियारी को खत्म करना चाहते हैं. ये तो कुछ उचित मुझे नहीं लग रहा है. हे पिताजी, फिर तो मैं कहूंगा कि इससे बड़ा और कोई मूर्ख ही नहीं हो. फिर पढ़ा लिखा मूर्ख है, वो ना समझे.
नातः परतरम लोके क्वचिद आश्चर्यम अद्भुतम पुत्रदार गृहासक्त पंडित परिगीयते। ये पंडितों के लिए है। देखो इन सबको, ये सूर्य प्रकाश को नींद आने लगी सुनते सुनते, क्योंकि बेचारा गृहस्थी हो गया ना, त्रस्त हो गया है। गृहस्थ यानी त्रस्त। संसार के जो लोग हैं वो बड़े आनंदी है। धन्यवाद है कि तुम लोग सुन रहे हो फिर भी मुस्कुरा रहे हो। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव। ये लोग अपने आप को पंडित लगाते। वो नेहरू पंडित लगाता था अपने आप। पंडित कहते किसको हैं? जो व्यक्ति संसार में बंधन में बंधा हुआ है और फिर भी अपने आप को पंडित कहता है, तो इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में और क्या हो सकता है। पंडित तो ब्रह्मद्रष्टा होता है। पंडित का मतलब ब्रह्मद्रष्टा। पंडा ब्रह्म विषयणी बुद्धि संजाता यस्य स पंडितः। जिसमें ब्रह्म बुद्धि हो गई है, जिसमें राग द्वेष की वृत्ति समाप्त हो गई है, जिसमें सभी के अंदर ब्रह्म दर्शन करने की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई है, वो पंडित है। उसका व्यवहार ही बता देगा कि ये पंडित है। आजकल तो सभी लोग अपने आप को पंडित, और हमारे शास्त्रीय संगीत के अंदर तो फिरोज दस्तूर जो है ना, वो पारसी है, उसके आगे भी लगाते हैं पंडित फिरोज दस्तूर। और बोल क्या देंगे कि इस विषय का तो पंडित है ना, वो ज्ञानी है ना। अपने पुत्र की इस तरह की बातें सुन करके भगवान वेद व्यास को बड़ा दुख हुआ कि मैं चाहता क्या था कि मेरा पुत्र ऐसा बने वैसा बने, और इसने तो मेरी सारी आकांक्षाओं के ऊपर पानी फेर दिया। उनके आंख से आंसू आने लगे। व्यास जी महाराज विचार करने लग गए कि ये क्या हो गया। मैंने तो अपने लड़के को पढ़ा लिखा करके और तैयार किया था, और ये तो बिल्कुल ही अलग ही निकल गया है। रोने लगे व्यास। उनके आंखों से आंसू आने लगे। व्यास की ऐसी स्थिति देख करके सुखदेव ने कहा, अहो माया बलम चोग्रम यन मोहितम महापंडितम। अहो इस माया का कितना भयंकर प्रबल आवेग है। वेदांतस्य च कर्तारम, जिसने वेदांत शास्त्र का निर्माण किया है। अष्टादश पुराणानाम च कृत्वा, 18 पुराणों का जिसने निर्माण किया है। 18 पर्वती महाभारत का जिसने निर्माण किया है। और ब्रह्मसूत्र से च कर्ता, ब्रह्मसूत्र का जो करता है, ऐसा विद्वान पुरुष, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अहो माया बलम चोग्रम यन मोहितम महापंडितम। आप सोचिए, आप गृहस्थों को मैं दोष नहीं दूंगा, जब इतने बड़े विद्वान महापुरुष पंडित की आंखों से संसार की लौकिकता के आ जाने पर आंख से आंसू आ सकते हैं, तो अगर तुम रोते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसा। इसलिए सुखदेव ने फिर अपने पिता से कहा, आपको मेरी बातों से दुख हुआ है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। और मेरा प्रश्न यह है, क्या पूर्व जन्म में मैं आपका पुत्र था या आप मेरे पिता थे?
ये पंचभूत मात्र हमारे में विद्यमान है। ये कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये पिता पुत्र का तो संबंध अनुगत हुआ है, अभी अभी हुआ है। इससे पहले कहाँ था? किसके लिए आप मोह कर रहे हैं और क्यों करके मोह कर रहे हैं? व्यास ने इतना ही कहा। तुम एक काम करो, महाराज जनक के पास जाओ। महाराज जनक तुम्हारे इन सब प्रश्नों का जवाब तुमको दे देंगे। मेरी बात का अभी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं इस बात को समझ चुका हूं। वो विदेहराज जनक है, उनके पास जाओ। भगवान सुखदेव कहते हैं ये और एक ठगाई की बात आप कर रहे हैं कि जो राजा है और वो निर्मोही और विदेहराज, कैसे संभव हो सकता है? हे पुत्र, इसका भी जवाब मैं नहीं दूंगा। तुम उनके पास जाओगे, अपने आप तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। आज का प्रसंग मैं यहीं तक आपको कहूँगा और आपसे इतना ही कहूँगा, संसार प्रारब्ध कर्मानुसार तुम्हें प्राप्त हो गया है, उसे भोगिए, निश्चित रूप से भोगे बिना क्षय भी नहीं होगा। लेकिन उसमें आबद्ध मत होइए, बंधिए मत। जितना बंधते जाएंगे उतना दुखी होते जाएंगे। जैसे पानी में कमल रहता है, वैसे आप भी कमलवत साक्षी भाव से अगर संसार का उपभोग करेंगे तो हो सकता है आप बंधे नहीं और भगवत कृपा के और सद्गुरु कृपा के अधिकारी बन सकेंगे। इतना ही कहकर के मैं आज के वक्तव्य को विराम देता हूँ और गमन भाई और उनके परिवार को, समागत सभी भक्तों को जो हमेशा आ रहे हैं देवी के इस महायज्ञ में, उन सभी को खूब खूब मेरा आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति।